حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق N245 کا ضمنی الیکشن تحریک انصاف نے جیت لیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ریٹرننگ افسر محمد یوسف نے امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹوں کا اعلان کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق N245 کا ضمنی الیکشن تحریک انصاف نے جیت لیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ریٹرننگ افسر محمد یوسف نے امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹوں کا اعلان کیا۔ 11% رہی 11.8۔ اب میں سسٹر نمبر اور نام پڑھوں گا، ان کے ووٹوں کی تعداد پڑھوں گا۔ محمد احمد رضا صاحب، تحریک لبیک پاکستان، ووٹوں کی تعداد 9836۔ محمد دانش خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ووٹوں کی تعداد 425۔ محمد ریاض صاحب، آزاد امیدوار، ووٹوں کی تعداد 64۔ محمد شاہد صاحب، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان، ووٹوں کی تعداد 1177۔ محمد شاہ رخ، آزاد امیدوار، ووٹوں کی تعداد 12۔ محمد فاروق ستار صاحب، آزاد امیدوار، ووٹوں کی تعداد 3479 79۔ محمود باقی مولوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف، ووٹوں کی تعداد 29,475۔ محیط انور صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ووٹوں کی تعداد 13,193۔ تو یہ رزلٹ تھا غیر حتمی، اور جو رزلٹ کا کنسولیڈیشن ہے وہ کل 11 بجے یہیں پہ میں نے ایشو کر دیا ہے۔ کراچی کے حلقہ N245 کے ضمنی انتخاب کا میدان PTI نے مات لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار محمود مولوی کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے نمائش چورنگی پر جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N245 ضمنی انتخاب میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے امیدوار مولوی محمود 29,475 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ MQM کے امیدوار معید انور 13,193 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ تحریک لبیک کے امیدوار احمد رضا 9,836 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ محمود باقی مولوی کی کامیابی پر PTI کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے، نمائش چورنگی، جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے محمود باقی مولوی کے کامیابی پر تحریک انصاف کو مبارکباد پیش کی۔ N245 کی یہ نشست PTI کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے محمود مولوی کو مبارکباد دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں علی زیدی نے کہا کہ کراچی والوں نے بتا دیا وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، پورا شہر تباہ ہے، اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا۔ علی زیدی نے فتح کا بھرپور جشن آج منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت مبارک ہو۔ یہ سارے چوروں کا ٹولہ 13 جماعتوں کا ایک طرف کھڑا ہو کے دوبارہ شکست کھا گیا ایک عمران خان سے، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ آج کراچی کے N245 کے مقیموں نے، ریزیڈنٹ سے یہ کلیئرلی بتا دیا کہ یہ قوم عمران خان کے ٹائیگرز تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے بھی کھڑی اور ساتھ بھی کھڑی ہے، کیونکہ یہ مشکل مقابلہ تھا۔ بارش بھی ہوئی ہے، شہر بھی تباہ ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ پولنگ سٹیشنز پہ آپ جائیں تو آپ کو تباہی ہے، پورے شہر بہہ گیا، حال تباہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچے پولنگ سٹیشنز پہ اور ایک تنظیم، پراپر تنظیم نظر آئی جس سے یہ الیکشن لڑا۔ کہ الیکشن ہوا کراچی میں N240 کا، N240 میں تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کا الیکشن میں کیا ہوا، 10,000 ووٹ پہ جیتنے والا جیت گیا، 8% ووٹنگ ہوئی۔ یہاں بھی ووٹنگ پھر بھی کم ہوئی، جو بھی حالات تھے موسم کے، بارش کے، لیکن پھر بھی الحمدللہ لوگ نکلے اور انہوں نے لائنز ایریا جو کہ گڑھ سمجھا جاتا تھا، جو میں کہتے تھے کہ وہاں بھی تحریک انصاف زیادہ تر پولنگ اسٹیشن یونین کاؤنسل جیت گئی ہے، PIB بھی جیت گئی، N245 جیت گئی ہے۔ دیگر خبریں شامل کر اور آپ کو بتائیں کہ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں N245 میں ضمنی الیکشن میں MQM کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ PTI کو کامیابی ملی مگر 2018 کے مقابلے میں ووٹ کم پڑے۔ فتح کو PTI کے حق میں کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آئندہ ماہ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ سعید غنی نے عمران خان کو مفاد پرست قرار دے دیا۔ کہا عمران خان کو الیکشن کمیشن پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ شہباز گل کو ریمانڈ پر کراچی بھیجنے کا مطالبہ۔
ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ عمران جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, جو اس کے فالوورز ہیں. تو جو ووٹ عمران خان کو پڑا ہے کل بھی, اس کو آپ جو بھی کہیں, لیکن میری رائے میں یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے, اس لیے کہ 5 لاکھ سے زیادہ ووٹر اس حلقے میں ہیں اور جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 12% سے بھی کم تھا, اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو کوئی 29,000 سے کچھ ووٹ زیادہ پڑے ہیں. اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی کارکردگی اچھی نہیں رہی, ان کی پہلے بھی یہ نشست نہیں تھی, نشست تو پی ٹی آئی کی تھی یہ, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بھی کم ہوا ہے اور شاید اچھا خاصا کم ہوا ہے. اور میرا یہ ذاتی طور پہ خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے الیکشن میں اس میں لڑنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ وفاقی حکومت میں بیٹھی جماعتوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ بائی الیکشنز میں وہ جماعت حصہ لے گی جس کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نمبر 2 کی پوزیشن پہ ہوگا, تو اس فیصلے کی وجہ سے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کرایا. لیکن میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی الیکشن کی سمجھ مجھے تھوڑی بہت ہے, یہ ویو نہیں تھی, یہ بہت کم ووٹ ہیں جو پی ٹی آئی کو پڑے ہیں 18 کی نسبت بھی اگر ہم کر لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو الیکشنز 3 ہو رہے ہیں کراچی میں, اس میں آپ کو بہت سارا فرق اس میں محسوس ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی ان انتخابات میں. جو حیدرآباد کی آپ نے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک ایک سلسلہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چل پڑا ہے کہ لوگ اپنے ذاتی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے توہین رسالت کے قانون کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس پہ لوگوں کو اکساتے ہیں. کچھ بات کریں عوامی مسائل کی, تو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے خلاف درخواست کی سماعت. فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کی جماعت اسلامی تحریک انصاف کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, آج سنایا جائے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد سے. جی بلال, کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ سندھ میں دوسرے مرحلے کے تحت بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ ہے. فوری انتخابات اور ہنگامی درخواستوں سے متعلق 2 آئینی درخواستیں دائر کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے, جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی امشیر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے وکلاء نے دلائل دیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں دوسرے مرحلے کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا ہے جس میں تاخیر کی جا رہی ہے, لہٰذا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں. ساتھ ہی یہ بھی دلائل میں وکلاء کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ جو بیلٹ پیپر اور دیگر جو دستاویزات ہیں جو کہ چھاپ دی گئی ہیں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق, اس کو ناظر کی نگرانی میں لے لیا جائے تاکہ اس میں قبل از وقت دھاندلی کے امکانات رد ہو سکیں, جس پر عدالت نے اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا. دوران سماعت جماعت اسلامی کے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے یہ بھی دلائل دیے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب ایک سیاسی شخصیت ہیں اور خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, لہٰذا ان کی جو تقرری ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور جب تک یہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ دلائل دیے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں پہلے ہی تاخیر کی جا چکی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا جو اب اگلا مرحلہ ہے اور جو تاریخ دے دی گئی ہے اس کے مطابق بلدیاتی انتخابات کا جو عمل ہے, انعقاد ہے, اس کو یقینی بنایا جائے. عدالت نے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی ان آئینی درخواستوں جو فوری سماعت سے متعلق تھی اس پر فیصلہ تحریک انصاف کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, آج سنایا جائے گا. بہت شکریہ بلال. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پورا شہر کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. کراچی کا ہر علاقہ ٹوٹ پھوٹ اور گڑھوں میں تبدیل ہو گیا ہے. خیراتی پیکج کا اعلان نہیں, شہریوں نے 1505 ارب روپے کا ٹیکس جمع کروایا ہے, ہمیں ہمارا حق دیا جائے. روڈ پر جماعت اسلامی کی جانب سے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں حق تو کراچی مارچ کا انعقاد کیا گیا. بیت المکرم سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک مارچ میں مرد, خواتین, بزرگ, بچے اور نوجوانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. حافظ نعیم الرحمان مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کراچی کی صورتحال پر پھٹ پڑے. بولے کراچی کا کیا قصور ہے, نہ یہاں کے لوگوں کو پانی ملتا ہے نہ بجلی, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا بھی برا حال ہے. سندھ حکومت بتائے کہ 5000 ارب روپے سندھ کے کون سے شہر میں لگائے. صرف ترقیاتی بجٹ میں 5000 ارب روپے یہ بجٹ بنا چکے, کھا چکے. مجھے بتاؤ کہاں لگا؟ کیا لاڑکانہ میں لگا؟ کیا شکارپور میں لگا؟ کیا حیدرآباد میں لگا؟ کیا سکھر میں لگا؟ کیا کراچی میں لگا؟
खा गए सारा पैसा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंधी मुहाजिर के नाम पर वोट लेने वालों ने अपनी ही जुबान बोलने वालों का इस्तेहसाल किया। लिसानी बुनियाद पर सियासत करने वालों का पीछा करेंगे, उन्हें किसी सूरत इंतखाबात से फरार नहीं होने देंगे। ये मकामी सिंधियों और बलोचों का इस्तेहसाल करके, हक मार के, उनकी गर्दनों पे चढ़ के ये इख्तिदार में आते हैं। एक तरफ ये इंटीरियर सिंह से और देही आबादी से जबरन वोट ले लेते हैं और दूसरी सहूलतकारी कराची के वो लोग करते हैं कि जिनको कराची के लोग भर भर के वोट देते रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने लोड शेडिंग पर भी तनकीद की और कहा कि शहर के अवाम हुक्मरानों से पूछ रहे हैं वो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब करा के शहर का निज़ाम दुरुस्त कर देंगे। टीम के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर शहर की लाइनों की स्टडी कराई जाने पर पीपल्स लेबर यूनियन ने एतराज़ उठा दिया है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहसिन रज़ा के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी रिजवान, बताइएगा क्या एतराज़ उठाया जा रहा है इस मुआहदे पर? वर्ल्ड बैंक की जानिब से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में स्टडी के नाम पर 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्जा फराम किया गया है, जिस पर वाटर बोर्ड की पीपल्स लेबर यूनियन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लेबर यूनियन वाटर बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फरमाइएगा, मुआहदा जो हुआ है उस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, बहुत अरसे से ये काम चल रहा है। ये एक स्टडी जो है वो फ्री जायका ने करके दी थी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, और उसमें जो है वो 84 इंच से लेके 18 इंच तक की लाइनों को उन्होंने GIS के थ्रू मैपिंग भी कर ली थी। बाकी छोटी लाइनों को वाटर बोर्ड ने करना था, उन्होंने वो काम वहीं ठप कर दिया। और वाटर बोर्ड के मखसूस अफसरान ने जो है वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान चैप्टर के साथ साजिश करके ये 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का जो है कर्जा सिर्फ स्टडी के नाम पर लिया है। तो हम समझते हैं कि कराची के शहरियों को मकरूज किया जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब ये मुआहदा किया जा रहा था तो उस वक्त जो सौदाकार यूनियन है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की या दीगर जो यूनियंस हैं, क्या उनसे मुशावरत की थी इंतजामिया ने? देखिए, हमारी इत्तला के मुताबिक तो सौदाकार यूनियन से भी मुशावरत नहीं की और ना ही दीगर यूनियनों को भी बुलाया, मगर वक्तन फ़वक्तन तमाम यूनियन जो है अपने अपनी सतह पर एतराज़ात कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, और हमने भी कई लेटर भी खतूत भी लिखे हैं, तो वो यूनियनों को एतमाद में नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, ये बताइए मुझे कि 2 साल गुजर चुके हैं, मुआहदा तो हो चुका है, अमल दरामद भी जो है इस पर तकरीबन शुरू हो चुका है, तो ये बताइए अब आप क्या समझते हैं मसले का हल किस तरह निकल सकता है? हम तो ये कहते हैं कि कराची के मफाद में इतनी बड़ी रकम को जो है स्टडी के नाम पे जो बर्बाद कर रहे हैं, नई गाड़ियां और किराए के बंगलों में जो है दफातर शिफ्ट कर दिए हैं, उनको जो है हम अपील करते हैं चीफ मिनिस्टर से कि वो कैबिनेट में पास करने से पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर अगर ये रकम लगा दी जाए तो आप क्या समझते हैं शहरियों को क्या रिलीफ मिलेगा? बहुत सारी चीज़ों में आपके इल्म में दाबेजी में 1 महीने में 4-4 दफ़ा लाइन फट रही है। अगर सिर्फ वो 4 किलोमीटर के एरिया पे अगर स्टडी करके वो लाइन तब्दील कर दी जाए 4 किलोमीटर की, तो कराची के शहरियों को बेहतर सप्लाई मिल सकती है पानी। जी बिल्कुल, मोहसिन रज़ा मुतालबा कर रहे थे कि ये जो मुआहिदा है इस पर नज़रसानी की जाए और स्टडी के नाम पर रकम जी, खर्च बहुत करने की शुक्रिया बजाय। रिजवान इस तफसील का। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सेक्टर 14B औरंगी टाउन में पार्क अराजी पर कब्जा वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने DMC गरबी को फौरी एक्शन लेने का हुक्म दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अदालती अहकामात से आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सेक्टर 14B औरंगी टाउन में पार्क अराजी पर कब्जे के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने DMC वेस्ट को फौरी एक्शन लेने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने करार दिया है कि पार्क अगर अराजी गैर कानूनी है तो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को भी फैसले की नकूल अरसाल करने का हुक्म दिया है और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि इस अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दौरान समाअत हुज़ैफा खान एडवोकेट हैं, जिनका ये मौक़िफ़ है कि शहर के अंदर वैसे ही पार्क खत्म हो रहे हैं, जबकि सेक्टर 14B औरंगी टाउन में ये पार्क अराजी है जिस पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है, लिहाजा एक्शन लेने का हुक्म जारी किया जाए। एक्शन लेने का हुक्म जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल इस तफसील में। हैदराबाद M9 के एतराफ़ हाउसिंग स्कीम्स बनाने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, DG MDA और दीगर नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची हैदराबाद 9 के एतराफ़ हाउसिंग स्कीम्स बनाने के मामले पर शहरी महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कराची हैदराबाद M9 के एतराफ़ तमाम सरकारी राज़ी है। सरकारी महकमों की मिली भगत से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। तमाम सोसाइटी से कब्ज़े ख़त्म करवा कर एराज़ी वापस ली जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, DG MDA, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया है।
जामे कराची के ज़ेरे एहतमाम यौम हुसैन का एहतमाम किया गया, जिसमें इलामा शहनशाह हुसैन नकवी और दीगर उलमाए कराम खिताब करेंगे। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामे कराची में मौजूद हूँ और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों की याद में आज यहाँ पर जो है एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो हैं यहाँ पर जो है खिताब करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है ISO के प्रेसिडेंट भी इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। आज की इस तकरीब के हवाले से उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे यौम हुसैन के हवाले से। ये बताइएगा, आज जो है यहाँ पर आपने यौम हुसैन का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब भी यहाँ पे खिताब करेंगे। क्या इसका अनवान था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका अनवान है हुसैन इब्न अली अक़दार इंसानी के मुहाफ़िज़। तो हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं यहाँ यौम हुसैन मनाकर कि इमाम हुसैन अली मक़ाम अलैहिस्सलाम को किसी रंग, किसी नस्ल, किसी मसलक व मज़हब से जोड़ना जो कि इमाम की शख्सियत के साथ जुल्म है। लिहाजा हुसैन इब्न अली जब अक़दार इंसानी के इमाम है, अक़दार इंसानी के रहबर और रहनुमा है, तो आप करबला की वाक़े में देखें तो वहाँ बेक़ल्बी और बहुत सारे ईसाई और दूसरे मकाती फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। तो यानी हुसैन इंसानियत का इमाम है। हम दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि आइए इस इंसानियत साज फैक्ट्री के अंदर हम इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दें। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ISO के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। यौम हुसैन का यहाँ पर एहतमाम किया गया है। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो हैं यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, यहाँ पे खिताब करेंगे और यकीनन ISO की जानिब से बेहतरीन इकदाम उठाया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की याद में यहाँ पर जो है यौम हुसैन का एहतमाम किया गया, जहाँ पर करबला के हवाले से तफसील का। शहर कायद में सुबह से मौसम खुशगवार और आसमान पर सुनहरी बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कल से एक बार फिर बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला हवा के कम दबाव का सिस्टम 23 अगस्त से सिंध में दाखिल होगा। कल से शहर में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। दिन में दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि दिन में हवा 18 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। बात करें लोड शेडिंग की, तो शहर में लोड शेडिंग के जिन्नात ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। औरंगी टाउन के इलाके मिलर टाउन में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन तंग आ गए हैं। बिजली महंगी मगर नायाब। औरंगी के मिलत टाउन में 8 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि कभी 2 घंटे के बाद तो कभी 3 घंटे के बाद बिजली की आंख मचोली सुख चैन छीनने लगी है, जबकि बिजली की बंदिश से घरेलू उमूर मुतासिर हो रहे हैं। पूरे दिन में तो हम लोग 5-6 घंटे लाइट होती है, बाकी 3-3 घंटे के लिए लाइट चले जाती है। रात को तो वो तकरीबन चली जाती है, फिर वो घंटा 1.5 घंटा जो बहुत तकलीफ होती है लोगों को। शहर के दीगर इलाके जिनमें शाह लतीफ टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, शाह फैसल, मवाज गोट, खुदा की बस्ती, मेमन गोट, बल्दिया टाउन और तेसर टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं, बिजली की बंदिश से शदीद मुतासिर हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान है। डॉलर 15 पैसे सस्ता होने के बाद 85 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 214.65 रुपये से बढ़कर 215.50 रुपये पर जा पहुंचा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपये तक ट्रेड हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के उतार चढ़ाव के हवाले से कि इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया है। डॉलर 15 पैसे सस्ता होने के बाद अब 85 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 214.65 रुपये से बढ़कर 215.50 रुपये पर जा पहुंचा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपये तक ट्रेड हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने कम उम्र बच्ची के अगवा के मुकदमे में मुलजिम ज़हीर और शबीर की अबूरी ज़मानत में 26 अगस्त तक तौसीह कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में मुलजिम ज़हीर के खिलाफ कम उम्र बच्ची के अगवा का केस समाअत हुई। मुलजिम ज़हीर और शबीर को लिंक अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम के वकील की 31 अगस्त के बाद की तारीख देने की इस्तदा कर दी गई। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुलजिम पहले ही 1 माह से अबूरी ज़मानत पर है, संगीन नौयत के जुर्म है, मुलजिमान को लंबा रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने मुलजिमान की अबूरी ज़मानत में 26 अगस्त तक तौसीह कर दी है। अदालत ने मुलजिमान को मुकर्ररा तारीख को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है।
इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। 40 तालिब इल्मों ने इसमें हिस्सा लिया। इवेंट डायरेक्टर कहते हैं कि तालीम के साथ खेलों का फ़रोग़ भी ज़रूरी है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर डायमंड जुबली टेबल टेनिस टूर्नामेंट मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं और ये टूर्नामेंट में फ़ाज़ ने जो है पहली पोजीशन हासिल की है लड़कों में और शाहनूर लड़कियों में कामयाब हुई हैं। हम पहले बात करेंगे फ़ाज़ से। फ़ाज़, कितनी तैयारी की थी और कैसा रहा कंपटीशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी तो पिछले काफ़ी सालों से चल रही है। एक्चुअली खेलते हैं क्लब में तो प्रैक्टिस जारी रहती है। बाकी टूर्नामेंट जो था वो बहुत अच्छा था, इंतज़ाम बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, जो प्लेयर्स आए हुए थे काफ़ी कम्पिटिटिव थे, तो खेलने में मज़ा आया। अच्छा, जो लड़कियों में विनर रही हैं शाहनूर, इनसे बात करें, आप कितना कंपटीशन सख्त रहा आपके लिए या आसानी से जीत गई यहाँ फाइनल? कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा। जितना कंपटीशन रहेगा हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा, ताकि हमारी फॉर्म जो है वो कंसिस्टेंट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा परफॉर्म करें। अगर आगे लेवल पे जाना है तो हमारा कंपटीशन इस लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। स्टूडेंट की तरफ से रिस्पांस कैसा आता है? लड़कियाँ के इंटरेस्ट लेना चाहती हैं या बस पढ़ाई में या मोबाइल में? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है हर बार, हर ईयर हमारे पास कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता करके वुमेंस बढ़ रही हैं। सुना आपने कि विनर्स खिलाड़ी जो वो कह रहे हैं कि कोशिश है कि अच्छा खेलें और इस खेल में नाम बनाएं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत भी करने की पड़ेगी खिलाड़ियों। जी बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसील का। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान अंडर 19 के चैम्पियन खैबर पख्तूनख्वा और सदर्न पंजाब के दरमियान क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ने पहली इनिंग में 83 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 261 रन बना लिए। सदर पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के टारगेट के जवाब में बैटिंग अभी जारी है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद रियाज, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में ओवल ग्राउंड पर, जहां पर पाकिस्तान का जो सबसे एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान अंडर 19 सह-रोज़ा चैंपियनशिप, उसका आखिरी राउंड खेला जा रहा है और सदर्न पंजाब और केपी के वाइट्स के दरमियान यहां पर जो है वो मुकाबला जारी है। इस मैच का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। मैच को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि नतीजा खेज साबित होगा। ये अगर हम अंडर 19 चैंपियनशिप की बात करें तो कराची के 6 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे खेली जा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। 2 दफ़ा इसको रीशेड्यूल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिन थे वो मुकम्मल हुए और अब जो इसका आखिरी मरहला मुकम्मल होने जा रहा है, तो इसके अंदर अब फाइनल जो है वो 25 से 28 तक कराची के जो है वो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। तो अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ रीजन्स की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर यंग टैलेंट था। अंडर 19 की सतह पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला और यहाँ पर जो 6 के 6 रीजन्स हैं उनके कोचेस भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि इन खिलाड़ियों की सलाहियतों को देख रहे थे। यही वजह है कि अगर हम पाकिस्तान और नीदरलैंड में बात करें तो नसीम शाह जो कि यंगेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने 33 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वो भी इसी अंडर 19 फॉर्मेट से निकले हुए। तो पीसीबी की कोशिश है कि अंडर 19 फॉर्मेट को बेहतर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म के टूर्नामेंट सह रोज़ा खिलाए जाएँ, ताकि पिच पर स्टे करने की खिलाड़ियों को, बैट्समैनों को आदत हो और बॉलर्स भी जो है वो लंबे लंबे स्पेल। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। कराची में हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के तहत मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से अरकान ने शिरकत की है। हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के बानी मेंबर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सईद की जानिब से मुकामी होटल में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तारीख में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जन ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर दोनों सर्जरीज को लीगल फ्रेमवर्क देने पर इत्तफाक किया। कॉन्फ्रेंस में फैकल्टी की मंजूरी और ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रुजू करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर हनीफ सईद ने मेहमानों को खुतबा इस्तकबालिया में सोसाइटी के क़याम का मकसद बयान किया। पाकिस्तान में अब हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महफूज हाथों में है, ठीक है। सिर्फ क्वैकरी से बचना है, सही डॉक्टर का इंतखाब करना है और सही डॉक्टर वो है जो HRSP का मेंबर है, वो एक्चुअल डॉक्टर है। जहाँ भी आप सर्जरी कराएं पहले देख लें कि वो HRSP का मेंबर है या नहीं। अगर वो है तो उस सेंटर पर आप सर्जरी करा सकते हैं, और जो HRSP का मेंबर नहीं है इसका मतलब है कि वो एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है। मारूफ हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हिमायू महमद, प्रोफेसर मुगीज़ अमीन, डॉक्टर जुल्फ़िकार तोनियो, डॉक्टर शहाब बेग व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर बैनुल-अक़वामी सतह पर रवाबित बढ़ाना है। इसमें टूरिज़्म बहुत अच्छा हो सकता है। तो
ہوگا کیا کہ لوگ جیسے ٹرکی میں ہیں لوگ آئیں گے پاکستان، اور پاکستان اس وقت ہم کافی عرصے سے سب سے سستا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ وہاں سے آئیں گے، پاکستان آئیں گے، یہاں پہ نردرن ایریاز جائیں گے، واپس جانے سے پہلے 1-2 دن پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کرا لیں گے اینڈ دین دے ول فلائی بیک۔ کانفرنس میں لاہور، بھاولپور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں اور بیرون ملک سے معروف ڈاکٹرز نے شرکت کر کے رونق بخشی۔ کیمرہ مین ساجد احمد کے ہمراہ جنید فیروز، سٹی 21۔